Before we start the story, ponder and answer the questions. Have you ever been trapped by any of your desire? Number 2. Did you repent upon the instigating senses? If yes, how? The instigating desires could be the desire to buy a new bike, the desire to buy some costly gadgets, desire to buy some branded clothes and shoes, or desire to buy some kind of jewelry. These are the instigating agencies. Students, in this story, The Rat Trap, we would be discussing about two literary tools. Number 1, characters, and number 2, settings. The major characters of the stories are Rat Trap Peddler, Crofter, Blacksmith, Iron Master, and Edla. And in settings, the story starts in a rural area of Sweden, then it goes to the Crofter's cottage, thereafter Ironberg's, and ultimately the story ends at Manor's house. So these 4 settings are there in the. Hi students, before we start the lesson, let's know something about the writer Selma Lagerlöf. The writer of the story was a Swedish teacher and first woman to be awarded Nobel Prize in 1909 for literature. The first woman who was given membership of Swedish Academy in 1914, her stories have been translated in many languages. सेल्मा लेगलॉफ जो इसकी लेखिका है वो शिक्षक भी थी स्वीडन की। 1909 में उन्हें दुनिया की पहली महिला नोबेल प्राइज विनर का खिताब मिला। वो पहली महिला थी जिन्हें स्वीडिश एकेडमी ने 1914 में स्थायी सदस्यता दी। उनकी कहानियों को, अधिकतर कहानियों को अन्य कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। ये उनके महत्व को दर्शाता है। द स्टोरी is told somewhat in the manner of a fairy tale. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in the human being can be awakened through understanding and love. जहाँ तक इस कहानी की बात है, ये कहानी एक परियों की कहानी की तरह से सुनाई गई है और जो अक्सर इनकी कहानियाँ रहती हैं उन कहानियों में एक खास थीम रहता है और थीम यही होता है कि मनुष्य के अंदर अच्छाई होती है और उस अच्छाई को उजागर करने के लिए हमें उसके साथ, उसकी समझदारी के साथ और प्यार के साथ व्यवहार करना अनिवार्य होता है। The story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of the country. ये कहानी स्वीडन की जो लोहे की इस्पात की खानें हैं वहाँ दर्शाई गई, वहाँ की इसकी सेटिंग्स हैं और इन लोहे की खानों का अक्सर बहुत ज़्यादा जिक्र आता है स्वीडन के इतिहास में और स्वीडन की कहानियों में। अगर उस देश की कहानियों की बात करें, नाउ बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps. Why? He made them himself at odd moments from the material he got by bagging in the stores or at the big farms. एक समय की बात है, एक चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति था जो छोटी छोटी लोहे की तारों की बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता था। वो उन्हें अपने आप ही बनाया करता था उस मटेरियल से जिसे वो स्टोर से या बड़े बड़े फार्म हाउस से मांग करके लाता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. इसके बावजूद भी उसका व्यवसाय बहुत लाभदायक नहीं था और साथ ही से छोटी छोटी चोरी और भीख मांगना भी पड़ती थी। परंतु इन सबके बावजूद भी इसके कपड़े बहुत चीथड़े, फटे हाल रैग्स में फटे हुए कपड़े फटे होते थे, इनके गाल पिचके होते थे इसके और साथ इसकी आँख से भूख बहुत अच्छी तरह से झलकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road lapped to his own meditations. But one day, this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार से सड़क में बेपरवाह घूमने वाले इन लोगों का जीवन कितना उदास और कितना नीरस होता है। ये अक्सर अपनी सोच में ही डूबे रहते हैं। ऐसे ही एक दिन ये व्यक्ति भी एक ऐसी सोच की लाइन में डूब गया जो इसके लिए हमेशा के लिए बहुत एक एंटरटेनिंग यानी बहुत मनोरंजक बन गई। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. प्राकृतिक रूप से ये अपने रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक इसके मन में ख्याल आया कि ये सारी दुनिया भी तो एक चूहादानी है। जी हाँ, पूरी दुनिया, इसकी धरती, इसके सागर, शहर, गांव, ये सब के सब और कुछ नहीं है बल्कि एक चूहादानी है। ऐसा इसे लगा। It had never existed for any other purpose than to set baits for people.
It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat offered cheese and pork. And as soon as the animal let himself to tempt it to touch the bat, it closed in on him, and then everything came to an end. ये दुनिया किसी भी और उद्देश्य के लिए नहीं बनी है, सिवाय मनुष्य को प्रलोभित करने के लिए। बेट्स होता है जैसे किसी चीज़ को आकर्षित करने के लिए जो मटेरियल रखा जाता है, जैसे चूहादानी के अंदर पनीर या मांस का टुकड़ा हम रखते हैं। इसने कहा कि दुनिया की अमीरी, दुनिया के आनंद, दुनिया के घर मकान, यहाँ का भोजन, यहाँ की गर्मी, यहाँ के कपड़े, ये सब कुछ ठीक वैसा ही काम करते हैं जिस प्रकार चूहादानी में रोटी का टुकड़ा या पनीर या मांस का टुकड़ा काम करता है चूहे को प्रलोभित करने के लिए। उसी प्रकार से ये सारी अमीरी और यहाँ के ऐश्वर्य मनुष्य को उकसाता है। टेम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, मोटिवेट टू डू समथिंग नेगेटिव, समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये उकसाता है ताकि वो बैट को टच करें, इस लालच पे पड़ जाएं, और जैसे वो लालच के आ जाता है वैसे ही चूहादानी यानी कि यहाँ के जो पाप अपराध हैं वो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और मनुष्य हमेशा के लिए उस पाप की गिरफ्त में फंस जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. क्योंकि दुनिया इस बेकारी के लिए कभी भी बहुत दयालु नहीं थी, इसलिए दुनिया के बारे में ऐसा बुरा सोचते हुए इसे बहुत खुशी होती थी। एक इमेंस प्लेजर, अनवांटेड मीन्स इमेंस प्लेजर, अत्यधिक खुशी होती थी। It became a cherished pastime of his during many dreaded plottings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. एक इसके लिए बहुत खुशनुमा समय बिताने का एक मनोरंजक साधन बन गया। ये सोच इसके लिए, ये उन लोगों के बारे में सोचने लग गया जिन्हें जानता था और जो लालच के बिल्कुल खतरनाक जाल में फंस चुके थे, बन चुके थे, और उन सब के बारे में सोचता था जो अन्य लोग अब लालच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन उसमें फंस जाएंगे। One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little great cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. एक ऐसी अंधेरी शाम की बात है, ये सड़क के किनारे चल रहा था, अचानक इसे एक झोंपड़ी नजर आई। इसने वहाँ पे दरवाजे को खटखटाया और वहाँ रात्रि विश्राम के लिए आश्रय, शेल्टर में आश्रय मांगा, और इसे मना भी नहीं किया गया, यानी इसे शेल्टर दिया गया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. जबकि अक्सर इसे बहुत ही बुरे चेहरे मिलते थे जब ये शेल्टर मांगता था, परंतु ये व्यक्ति जो ऑनर था इस छोटी कॉटेज का, ये व्यक्ति अकेले बिना बच्चे और पत्नी के रहता था, इसलिए इसे लगा कि कोई व्यक्ति इसके साथ बात करने के लिए अगर इसके अकेलेपन में मिला है तो इसे इस बात से बड़ी खुशी हुई, इसलिए इसने इसका स्वागत भी किया, उसके साथ ही बहुत टॉकेटिव भी रहा। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from the tobacco roll that it was enough both for the stranger's wife and his own. तुरंत ही इसने जो दलिया ही पॉरिज को हम कहेंगे थोड़ा सा मीठा भोजन, उसका बर्तन इसने आग के ऊपर गर्म करने के लिए रखा ताकि शाम का खाना इसने अपने उस मेहमान को दिया, क्रॉप्टन ने, और साथ ही एक तंबाकू की स्लाइस काटी इतनी ज़्यादा ताकि वो दोनों के पाइप के लिए, दोनों की चिलम के लिए, यानी अपनी और उस मेहमान की चिलम के लिए पर्याप्त हो जाए, इतना तंबाकू काटा। Finally, he got out an old pack of cards and played merrily with his guest until bedtime. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. साथ ही इसने ताश निकाला और सोते समय तक के लिए वो उसके साथ मिजुली खेलता रहा। जितना व्यक्ति ये पॉरिज और रात को इसके आतिथ्य में दयालु था, जेनरस में दयालु था, उतना ही दयालु ये अपने कॉन्फिडेंस में रहा, यानी इसने अपनी विश्वसनीय बातें भी इस मेहमान को बता दी। और विश्वसनीय बातें क्या थी? The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramshaw ironwork and had worked on the land. उसने मेहमान को बताया, क्रॉफ्टर ने, कि जब इसकी खुशहाली के दिन थे, समृद्धि के दिन, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, खुशहाली, जब इसके समृद्धि के दिन थे तो उन दिनों ये रामशो आयरन वर्क्स के खेतों में किसान के रूप में काम किया करता था। क्रॉफ्टर मीन्स स्मॉल फार्मर, एक वहाँ पे छोटा किसान था, यानी इसकी भी खेती थी। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. अब जबकि ये खेतों में काम नहीं कर सकता, बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसने बताया कि इसकी एक गाय है जो इसका सहायता करती है। हाँ, वो बहुत ही असाधारण गाय है। वो उसे इतना दूध देती है कि वो क्रेमरी में, यानी चिलिंग प्लांट में जहाँ में मक्खन या पनीर बनाया जाता है, वहाँ पर भी दूध को बेचता है, और पिछले महीने इसने इसे दूध बेच करके 30 kroner पेमेंट के रूप में कमाए हैं, इसने बताया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस
incredulous नहीं है, the pronunciation is incredulous, dear students. For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10-corner bills. इसे लगा कि इसका मेहमान शायद इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसने खिड़की के पास गया, वहाँ कील से टंगा हुआ एक लेदर का पाउच था, उसे निकाला और उस पाउच में से 30 रिंकल्ड मीन्स रिंकल होता है वैसे झोरियाँ या मीन्स मुड़ा हुआ सिकुड़े हुए और 10-10 रुपये के 3 नोट इसने वहाँ से निकाल करके दिए. These he held up before the eyes of the guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. ये उसने बिल्कुल जान करके उसके सामने अच्छी तरह से हिलाए कि 3 नोट है जो मैंने कमा रखे हैं, और उसने वापस उस पाउच में सबको रख दिया जिस पाउच से ये निकाले गए थे. Now important questions over here. Question number 1. From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? Question number 2. Why was he amused, happy with the idea? Question number 3. Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? Why was the crofter so talkative? And the last question, why did the crofter show the 30 kroner to the peddler? These are the questions that